Hello. So good evening. Am I audible? Yes, sir. Yeah. So Omkar, you're the only students who are going to join this class, or some other students are there? Some other students are there, sir, but they are not joining. So today you will be the only person who will remain in the class? No, sir, I think they are joining. They are joining, no? So shall we wait for them, or shall we सर कल start with भी our... मैं ही था, एक अकेला कल भी मैं ही था, आज पता नहीं. Okay. So Omkar, so what we do, we start with our class. Okay. Okay, sir. And Okay, sir. as you know that today's class is based on theory of computation, right? Yes, sir. Yeah. So yeah. So are you able to see my screen? I have shared my screen. Yes, sir, visible. Okay, screen is visible, right? Yeah. So right now, okay, will you please tell me you are in which class? Sir, third year. Third year. So in which year you have learned theory of computation subject? सेम 4 में पढ़ा था. Same four. Okay, fine. So what you have learned about talk? Because I just wanted to know first key what you know, so that based on the knowledge that you have, we can proceed with this subject, right? Yes, sir. Yeah. So what do you know about theory of computation? So have you heard about the Chomsky hierarchy? Yes, sir. So what is this Chomsky hierarchy? उसने क्या किया था Chomsky ने? Okay, I'll brief you, है ना? तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. So let's see. So this is the very first topic that I would like to start with, right? So it's a Chomsky hierarchy of a grammar. See that ये जो talk है ना theory of computation, इसको theory of formal languages भी कहा जाता है, right? Formal languages और automata theory भी कहा जाता है. हाँ, yes, sir. Yes. So this is the PPT. Just a second. Hello. Hello. हाँ सर. हाँ ज्वाइन हो गया है, एक ही है फिलहाल, ओंकार. हाँ हाँ मैंने हैव स्टार्टेड, मतलब स्टार्ट कर दिया मैंने. ओके. अच्छा ठीक 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 है, चलेगा. हाँ हाँ इसका मैंने रिकॉर्डिंग भी आई हैव स्टार्टेड. ओके चलो, वेरी गुड. बहुत अच्छा. चलो ठीक है सर, ओके बाय बाय. Yeah. So as we discuss the Chomsky hierarchy, Chomsky ने क्या किया था? Formal languages मतलब क्या? कि the language which would be understood by the system, है ना? तो फॉर्मल लैंग्वेज बोले तो इट्स अ वेरी डिस्क्रीट लैंग्वेज, है ना? छोटी छोटी लैंग्वेज होती है. सो दैट लैंग्वेज इज अंडरस्टूड बाय अ सिस्टम, इट इज कॉल्ड एज अ फॉर्मल लैंग्वेज. और जैसे हर लैंग्वेज के लिए, कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज भी आपने लिया ना, तो दिस इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी जनरेटेड by using some grammar, right? They follows the rules of the grammar. Yes or no? Yes, sir. Just like
the formal language, just like your natural language, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, whatever the language that you studied, natural language जो है हमारी, वो सारे ग्रामर्स के कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, then and then only we can understand it, right? वैसा ही computers also understand some language. That language is called as a formal language, or that formal language भी they follow certain set of rules, and that set of rules is called as a grammar. They follows the rules of the grammar, and then and then only the formal language can be generated. अब चॉम्स्की ने क्या किया, उस formal into 4 different types of languages, right? तो उसने क्या किया, 4 टाइप के ग्रामर लिखे और उनके पावर्स भी अलग अलग थे, राइट? सो वील सी वन बाय वन कि व्हाट टाइप ऑफ ग्रामर्स इट हैज. सो जब भी मैं ग्रामर की बात करूंगा तो ग्रामर बोले तो क्या था, व्हाट इज द ग्रामर? यस, जब भी मैंने ग्रामर बोला तो ग्रामर मीन्स व्हाट? ग्रामर का डेफिनेशन क्या था? ग्रामर का डेफिनेशन था, ग्रामर कंसिस्ट ऑफ 4 टपल्स, कैपिटल जी, और 4 टपल्स कहते हैं वो वी टी पी एन एस. यस और नो? Yes, sir. Okay, so this V means what? V is a set of your non-terminal symbol, T is a finite set of terminal symbol, P is your production rules, and S is the start symbol. Okay, so based on this production rules, ये production rules के type, जैसे ही मैंने production rules देखे कोई भी grammar के, तो I can say that ये grammar जो है ये इस language का grammar. Getting it? So this languages are differentiated on the basis of their production rules. So then there are 4 types of grammar. अब कौन कौन से टाइप के ग्रामर है? हम लोगों ने देखे कि टाइप 0 ग्रामर, टाइप 1 ग्रामर, टाइप 2 ग्रामर और टाइप 3 ग्रामर. ऐसे 4 टाइप के ग्रामर्स आप लोगों ने पढ़े थे, Yes, sir. राइट ना? तभी ये दिस 4 टाइप्स ऑफ ग्रामर. तो what is type 0 grammar? Type 0 grammar is unrestricted grammar or a phase structured grammar is, right? अब ये ग्रामर जो है unrestricted grammar, अब ये like every other grammar, this grammar is also generate some language. Yes or no? ये ग्रामर कौन सा लैंग्वेज जनरेट करता है? इसको बोलते हैं इट इज जनरेटिंग रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज. ये कौन सी लैंग्वेज जनरेट करता है? REL. इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज. अब ये लैंग्वेज ये जो जनरेट करता है, इसको वेरीफाई करने के लिए देयर इज वन मशीन, राइट? और अ मैथमेटिकल मॉडल इज डेवलप्ड टू वेरीफाई द लैंग्वेज वेदर द लैंग्वेज इज करेक्ट और नॉट. जैसे हमारे पास कंपाइलर होता है, जैसे सी प्रोग्रामिंग हम लोगों ने लिखा, तो सी प्रोग्रामिंग प्रॉपरली लिखा है कि नहीं, उसका सिंटैक्स करेक्ट है कि नहीं, ये चेक कौन करता है? कंपाइलर. यस और नो? Yes, sir. तो वैसे ही ये जो लैंग्वेज जनरेट हुई है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, क्या इसने ये फेस स्ट्रक्चर्ड ग्रामर या अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर फॉलो करके जनरेट हुआ है कि नहीं, ये चेक करने के लिए देयर इज वन एक्सेप्टर, ओके, और अ लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर. क्या है मेरे पास? आई एम हैविंग अ ट्यूरिंग मशीन. क्या था मेरे पास? ट्यूरिंग मशीन. यस और नो? Yes, sir. राइट. देन we'll see the type 1 grammar. Type 1 grammar था मेरा context sensitive grammar. अब context sensitive grammar कौन सा language generate करता है? It generates I am having automata called as LBA, linear bounded automata. I hope you understood this. ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, फिर भी I just wanted to brush you up कि क्या क्या हुआ है, एंड हम लोग फिर किस तरीके से इस लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे. इट डिपेंड्स ऑन दिस lecture, because this Chomsky hierarchy is going to give you the brief about the complete syllabus of your theory of computation. Yes or no? Yes, sir.
ओके, देन टाइप 2. अब टाइप 2 ग्रामर कौन सा था मेरा? टाइप 2 ग्रामर था मेरा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. अब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या लैंग्वेज जनरेट करता था? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेट करता है CFL, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. अब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए कौन सा ऑटोमाटा था आपके पास? डू यू रिमेंबर एनी ऑटोमाटा which will recognize the CFL, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज? Don't know, sir. Now I Okay, forget. okay. So I'll tell you. It is called as a push down automata. कौन सा लैंग्वेज जनरेट करता था? Push down automata. पुश डाउन automata. So it is recognizing this push down automata is a machine which is recognizing the language generated by this CFL. और सबसे छोटा, सबसे लास्ट में क्या था मेरे पास? आई एम हैविंग टाइप 3 ग्रामर. टाइप 3 ग्रामर कौन सा था? रेगुलर ग्रामर. व्हाट इज द टाइप 3 ग्रामर? Regular grammar. राइट. और रेगुलर ग्रामर से कौन सी लैंग्वेज जनरेट होती है? रेगुलर लैंग्वेज. और रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए क्या है हमारे पास? FA. क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा. यस. और आपने ज्यादा से ज्यादा टाइम इसी के साथ बिताया होगा. जब भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो you might have learned only the finite automata. Half of your time goes in studying the finite automata, working of finite automata, right? Yes, sir. Or regular language can be expressed or can be represented by using RE, regular expression. Yes? Yes. Yeah. So there are two students joining. I suppose the other student is still there. मैंने अभी उसको ज्वाइन कराया है. Yeah, it seems there are 3 per day. Ankesh Janbandhu, are you there? Yes, sir. Yes, Ankesh. Yeah. So right. So what we do, this is the brief about the Chomsky hierarchy. There are 4 types of grammar that we are going to learn. Right? And then we'll see that we have seen there are 4 types of grammar: type 0, type 1, type 2, type 3. टाइप 0 तो अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर, जिससे रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज जनरेट होती थी और उस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए मेरे पास ट्यूरिंग मशीन था. कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर इज अ टाइप 1 ग्रामर, राइट. एंड उसके लिए उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए मेरे पास LBA है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमाटा. टाइप 2 इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से जनरेट होने वाली लैंग्वेज है CFL, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. और उस कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए मेरे पास है PDA, पुश डाउन ऑटोमाटा, राइट. एंड द टाइप 3 ग्रामर इज द रेगुलर ग्रामर. रेगुलर ग्रामर से जनरेट होने वाली लैंग्वेज है रेगुलर लैंग्वेज. और रेगुलर लैंग्वेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन. ओके. और रेगुलर एक्सप्रेशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए मेरे पास है फाइनाइट ऑटोमेटा. अंडरस्टूड? आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर. Yes, sir. ओके, चलो. So we are not going to we are going to put more stress on type 3 grammar first. Okay, सिर्फ हम लोग अभी type 3 पढ़ेंगे. type 2, type 0 और type 1 इसके बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, right? So we'll go step by step. क्योंकि type 3 grammar is the basic grammar. सबसे weakest grammar is what? type 3. Okay. और type 3
कौन सा ग्रामर है मेरा? रेगुलर ग्रामर है, और उस रेगुलर ग्रामर से जो जनरेट होती है वो रेगुलर लैंग्वेज है। उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या रहता है मेरे पास? आई एम हैविंग अ फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर दिस। देन टाइप 2 ग्रामर। टाइप 2 ग्रामर क्या था मेरे पास? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या था मेरे पास? पुश डाउन ऑटोमेटा। देन टाइप 1 ग्रामर क्या था? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। उसके लिए क्या था मेरे पास? लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। एंड देन टाइप 0 ग्रामर, जो मोस्ट पावरफुल ग्रामर, इट्स अ वेन डायग्राम, राइट? टाइप 0 ग्रामर क्या था? अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर और फेज स्ट्रक्चर्ड ग्रामर और रिकर्सिव इन्यूमरेबल ग्रामर। तो इससे जो लैंग्वेज जनरेट होती थी वो रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज है, और उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए मेरे पास ट्यूरिंग मशीन था। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू focus on this part, finite automata, right now. Great. So here I'll just skip this part because I just wanted to discuss the context, sorry, regular grammar only, not context free grammar. So we'll see the basic structure of regular grammar. So type 3 grammar. अब type 3 grammar क्या होता था? This regular grammar, definitely मैंने जब बोला था G क्या था मेरा? G consists of, G is a grammar. A formal definition क्या है grammar का? Regular grammar is defined by using these 4 tuples, NTPS, या sometimes it is called as a VTPS as well. तो अभी V क्या है? V is a finite set of non-terminal symbol. T क्या था? Finite set of terminal symbol. P is a set of production rule, and S is my start symbol. So what happens here? जो भी ये ग्रामर बनता है ना, रेगुलर ग्रामर का प्रोडक्शन रूल्स मैंने देखा कि मुझे पता चलना चाहिए कि मेरा रेगुलर ग्रामर है। क्या है इसमें कि जनरली जो नॉन टर्मिनल सिंबल होता है ना, ये वाला, दिस इज जनरली डिनोटेड विद कैपिटल लेटर्स, राइट? और ये जो होता है, ये होता है मेरे स्मॉल लेटर्स या फिर कुछ ऑपरेटर्स, स्मॉल लेटर्स, या इसमें डिजिट्स रहेंगे, या सम ऑपरेटर्स रहेंगे, या सम स्पेशल सिंबल्स भी रह सकते हैं। गेटिंग इट? एंड जो टर्मिनल सिंबल है, दे आर अ पार्ट ऑफ माय स्ट्रिंग। ये जो लैंग्वेज बनती है ना, तो लैंग्वेज विल बी जनरेटेड ओनली फ्रॉम द टर्मिनल सिंबल्स होंगे। और ये जो लैंग्वेज है, जो टर्मिनल सिंबल से जो लैंग्वेज बनती है, वो लैंग्वेज जनरेट होने के लिए नॉन टर्मिनल सिंबल इट विल हेल्प यू आउट। लेकिन नॉन टर्मिनल सिंबल इज नॉट अ पार्ट ऑफ टर्मिनल, नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग और नॉट अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज। गेटिंग इट? सो उसमें एक मेरा स्टार्ट सिंबल रहेगा जहां से आई कैन स्टार्ट डिराइविंग माय स्ट्रिंग, और दूसरा क्या है? प्रोडक्शन रूल्स। जैसे ही मैंने प्रोडक्शन रूल्स को देखा तो आई कम टू नो दैट कि ये कौन से टाइप का ग्रामर है। जैसे ही मैं रेगुलर ग्रामर को देखूंगा तो प्रोडक्शन रूल्स जो होंगे ना, वो इस टाइप के होंगे। सो कैपिटल ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए बी। तो कैन यू टेल मी नाउ which one is a non-terminal symbol here? A and B. This capital A and this capital B are a non-terminal symbol, right? And small a जो है वो क्या है मेरा? Terminal. टर्मिनल सिंबल। जो भी मेरी स्ट्रिंग रहेगी वो विच कंसिस्ट ऑफ ओनली टर्मिनल सिंबल, राइट? इसका मतलब क्या है ये? और उसका दूसरा टाइप क्या है? ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए। इसका मतलब ये है कि जो जिस भी प्रोडक्शन रूल, वॉट एवर द प्रोडक्शन रूल दैट आई विल सी, इन दैट प्रोडक्शन रूल आई विल फाइंड इट आउट, या तो लेफ्ट हैंड साइड में एक नॉन टर्मिनल रहेगा, या दैट इज फिक्स्ड कि रहना एक ही है, लेकिन राइट हैंड साइड में एट द मोस्ट एक ही नॉन टर्मिनल सिंबल रह सकता है। एट द मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, रह भी सकता नहीं भी रह सकता। यहां पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो एग्जैक्टली वन रहना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में एग्जैक्टली वन नॉन टर्मिनल है, राइट? दोनों में भी, यस और नो? Yes, sir. और राइट हैंड साइड में एट द मोस्ट वन है। एट द मोस्ट का मीनिंग समझ लो एक बार। एट द मोस्ट मतलब अगर रहा तो एक ही, नहीं तो नहीं रहा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखो एट द मोस्ट एक है, फिर यहाँ पे है ही नहीं। कभी भी दो नॉन टर्मिनल सिंबल यू वोंट फाइंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस प्रोडक्शन। मतलब कैसा?
ए प्रोड्यूसेस ए कैपिटल ए बी, इस तरीके से कभी नहीं मिलेगा आपको। अभी देखो राइट हैंड साइड में कितने नॉन टर्मिनल है यहाँ पे, एक भी नहीं है। नहीं, राइट हैंड साइड में देयर आर टू नॉन टर्मिनल है ना, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, दिस टू नॉन टर्मिनल सिंबल आर प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन रूल्स, so therefore I'll say that this is not my regular grammar. Okay, this is not regular grammar. Why? Because this production rule, A produces small a capital B, as there are two non-terminal symbol present on the right hand side of this grammar, so therefore it cannot be my regular grammar. I hope you understood this. Yes sir. तो यहाँ पे देख लो, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन रूल इज अ सिंगल नॉन टर्मिनल, लेफ्ट हैंड साइड में एक ही नॉन टर्मिनल है, देख लो यहाँ पे, ये देखो एक नॉन टर्मिनल है, राइट, उसको नॉन टर्मिनल भी बोलते हैं और वेरिएबल भी बोलते हैं। राइट हैंड साइड में इट कैन बी अ टर्मिनल फॉलोड बाय अ नॉन टर्मिनल और ओनली अ सिंगल टर्मिनल, मतलब या तो एक टर्मिनल सिंबल रहेगा, उसको फॉलोड बाय रहा तो एक ही नॉन टर्मिनल रहेगा, नहीं तो नहीं भी रह सकता है। गेटिंग इट? So for example, you will see here, so this is, I am having a grammar, so non-terminal, there are two non-terminal, capital S and capital A. Terminal मेरे पास क्या क्या है, I am having small a, small b and this epsilon, where S is my start symbol here, और P जो है वो देखो P क्या क्या है, P is like this, P को हम लोग प्रोडक्शन रूल जो है, so production rules किस तरीके से है मेरे पास, I am having this S produces small a capital A, or this S produces small a and this A produces small b. So can you tell me from this set of regular production rules, so whether it is a regular grammar or some other grammar? Regular grammar sir. Regular grammar है, right? क्योंकि लेफ्ट हैंड में एक ही है चलेगा, राइट हैंड साइड में ज्यादा से ज्यादा एक है, एक से अगर ज्यादा होता है तो मैं इसको बोलता था कि दिस इज नॉट अ रेगुलर ग्रामर, राइट? Yes sir. Fine. So this is the regular grammar. Up, I'll share you the new screen. So we'll quickly go to the key, what is my NFA, what is a DFA. Yeah, so let it be. So I hope you got to know that key. Yeah, so if this is the so we'll continue our lecture series that we have seen the basics of regular grammar कि regular grammar हम लोगों ने देखा, right? और regular grammar से yeah, so here what we see कि we have seen regular grammar, रेगुलर ग्रामर का स्ट्रक्चर क्या रहता है, उसके प्रोडक्शन रूल्स क्या होते हैं, दैट वी हैव सीन, और रेगुलर ग्रामर से क्या जनरेट होता है, रेगुलर लैंग्वेज, राइट? और रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कौन करता है, हु इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट?
कौन एक्सेप्ट करता है? फाइनाइट ऑटोमेटा. फाइनाइट ऑटोमेटा. वेरी गुड. अब आपने क्या क्या पढ़ा फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में, मैं आपको बताता हूँ कि फाइनाइट ऑटोमेटा जो होता है ना, फाइनाइट ऑटोमेटा दो टाइप का होता है. एक होता है फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट, और दूसरा होता है फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट. ग्रेट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. अब फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और दो टाइप के थे. एक था आपका एनएफए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और दूसरा था आपका डीएफए, कॉल्ड एज अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. यस. यस सर. और फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट में आपने देखा था कि एक था आपका मूरे मशीन और दूसरा था आपका मिले मशीन. डन. ये आप लोगों ने पढ़ा है. यस सर. इसके बारे में क्या पता है आपको? थोड़ा सा मुझे बता सकते हो कि क्या एनएफए डीएफए में क्या मालूम है आपको? क्या था ये एनएफए और क्या था ये डीएफए? अगर कुछ आइडिया है तो हाँ बोलो, नहीं आइडिया है तो मैं बताऊंगा आपको क्या है. यस. ओंकार, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? नो सर. नो. एंड ओके. एंड अंकेश? नो सर, नो आइडिया. नो आइडिया. चलो ठीक है, मैं पहले आपको बता देता हूं कि मेरा एनएफए और डीएफए फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या है. ओके. जो ये फाइनाइट ऑटोमेटा है ना, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इट कंसिस्ट ऑफ 5 टपल्स, क्यू सिग्मा डेल क्यू जीरो एंड सेट ऑफ फाइनल स्टेट. गेटिंग इट? इसके बारे में आपको पता है 5 टपल्स होते हैं करके फाइनाइट ऑटोमेटा के. यस और नो? अब ये क्यू क्या है? क्यू इज व्हाट? दिस क्यू, इस क्यू को अगर बोलना है तो मैं बोलूंगा इट इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स. सिग्मा क्या है? इट्स अ फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल. राइट. और दिस डेल इज माय ट्रांजिशन फंक्शन. ओके. एंड Q0 जो है वो मेरा इनिशियल स्टेट है, और जो सेट ऑफ फाइनल स्टेट है ये F जो है वो सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स है. इसका मतलब क्या पता चला कि जो भी मेरा फाइनाइट ऑटोमेटा होगा उसमें एक से ज्यादा फाइनल स्टेट हो सकते हैं. आर यू गेटिंग इट? यस सर. चलेगा. ओके. अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा किस तरीके से वर्क करता है. आई नीड वन मोर ब्लैंक स्लाइड हियर. ओके. तो हम बात करेंगे पहले फाइनाइट ऑटोमेटा की, देन विल सी की एनएफए क्या होता है, डीएफए क्या होता है, so that we can go ahead with the whatever the slides that we have. ओके. सो हम किसकी बात कर रहे थे? फाइनाइट ऑटोमेटा की. एफए, फाइनाइट ऑटोमेटा. अब फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे काम करता है देखो. फाइनाइट ऑटोमेटा का काम क्या है? इट इज व्हाट? इट इज अ लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर. काम क्या करता है?
लैंग्वेज को वैलिड लैंग्वेज है कि नहीं है, मतलब वैलिड रेगुलर लैंग्वेज है कि नहीं है, वो देखने का काम किसका है, फाइनाइट ऑटोमेटा का। सो अज्यूम करो कि दिस इज योर इनपुट टेप। क्या है, दिस इज योर इनपुट टेप, और इनपुट टेप पे दीज आर द वेरियस मेमोरी लोकेशन, और इस मेमोरी लोकेशन पे सम इनपुट सिंबल्स आर देयर। इनपुट सिंबल्स आर प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ zeros and ones, suppose. Getting it? And there is a state indicator. इसको मैं क्या बोलूंगा, this is a state indicator. And I'll just say that this is my state Q0, I'll say Q1, यहाँ पे बोलूंगा Q2, और ये मेरा Q3. And assume करो कि ये मेरा स्टार्ट हमेशा क्या कहां से होगा, इनिशियल स्टेट से वो स्टार्ट करता है. And this is a tape head, which is this is my tape head. Getting it? I hope you understood this. Yes, sir. अब मैंने बोला कि फाइनाइट ऑटोमेटा में आई एम हैविंग दिस 5 टपल्स. कौन सा था, कैपिटल Q, सिग्मा, डेल, Q0 एंड सेट ऑफ F. तो टेल मी व्हाट इज Q हियर. कैपिटल Q मतलब क्या, कैपिटल Q किसका सेट है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स. हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, 4 स्टेट्स, Q0, Q1, Q2 एंड Q3. ये क्या है, मेरे स्टेट्स है, तो दे आर बिलोंग्स टू दिस कैपिटल Q. सिग्मा क्या है, सिग्मा इज अ सेट ऑफ इनपुट सिंबल. इनपुट सिंबल क्या क्या है मेरे, इट कंसिस्ट ऑफ zeros and ones only. यस, Yes, sir. ओके. डेल के बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको. और Q0 क्या है, Q0 इज माय इनिशियल स्टेट. यहाँ पे भी Q0 ही मेरा इनिशियल स्टेट है, बिकॉज Q0 इज माय इनिशियल स्टेट. और F क्या है, F इज अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट, सो F माइट बी माय Q3. और यहाँ पे फाइनल स्टेट एक ही है ऐसा अज्यूम करते हैं हम लोग, एक से ज्यादा भी हो सकता है. गेटिंग इट? अब देखो डेल फंक्शन मेरा कैसे काम कर रहा है यहाँ पे. से डेल, व्हाट इज द करंट स्टेट, कैन यू टेल मी व्हाट इज द करंट स्टेट. ये जो स्टेट इंडिकेटर है ना, ये हमेशा किसको पॉइंट करेगा, करंट स्टेट को. ये किसको पॉइंट कर रहा है, करंट स्टेट को. दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेट इंडिकेटर. ये जो पॉइंट है ना, ये किसको पॉइंट कर रहा है अभी बताओ, Q0. Q0. सो आपका करंट स्टेट क्या हो जाएगा, इफ इट इज पॉइंटिंग टू Q0, तो यू कैन से दैट योर करंट स्टेट इज इक्वल टू Q0. अब टेल मी, ये जो टेप हेड है किसको रीड कर रहा है, 0 को. 0 को. तो दिस विल बी योर करंट इनपुट सिंबल. करंट इनपुट सिंबल क्या है, 0. सो व्हाट इट सेज दैट ये फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे काम करता है. तो मैं डेल फंक्शन के बारे में बताऊंगा आपको कि इट विल टेक द करंट स्टेट दैट इज Q0. It will take the what is the current input symbol it is about to read, that is 0. After reading this current input symbol, what is your next state? Suppose next state is your Q2, right? So what will happen, ki the state will change. So this is your current state CS, and this is your current input symbol CIP, and this is your next state. State transition table, इसको 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 क्या बोलते हैं हम, स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन. मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे जाएगा. आपका जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो एक इनपुट सिंबल को रीड करता है. दिस इज माय करंट इनपुट, करंट स्टेट, करंट इनपुट सिंबल. इसको रीड करने के बाद इट विल चेंज द स्टेट. जो पहले मेरा स्टेट Q0 था, अभी वो कहां चला जाएगा, Q2. और Q2 को जाने के बाद जो टेप हेड जो है वो इट विल मूव टुवर्ड्स राइट बाय 1 टू रीड द नेक्स्ट इनपुट सिंबल. गेटिंग इट? Yes, sir. राइट. सो अभी नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, Q2 इज माय करंट स्टेट.
and tell me what input symbol it is going to read. Q3. नहीं, input symbol. Input symbol 1. इनपुट सिंबल 1. तो इसको कैसे रीड करेंगे हम? डेल करंट स्टेट मेरा Q2 है, मशीन जो रीड करने वाली है वो इनपुट सिंबल 1 है. इसको रीड करने के बाद ये चला जाएगा Q3. ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि Q3 में जाएगा, जा सकता है, राइट? सो Q3 इज योर नेक्स्ट स्टेट. सो सर हमने Q1 क्यों स्किप किया? डिपेंड है ना, वो ऐसा हम लोगों ने बनाया है. ऐसा ऐसा जरूरी नहीं कि स्किप करेगा. स्किप भी हो सकता है, स्किप नहीं भी हो सकता है. अच्छा, गेटिंग इट? ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि Q1 ये सीक्वेंस में ही फॉलो होगा. इट डिपेंड्स. मतलब क्या है कि अगर मैंने इस तरीके से इसका ट्रांजिशन टेबल किस तरीके से, डायग्राम किस तरीके से बनेंगे? Q0 है, ये क्या कर रहा है? 0 रीड करने के बाद कहां जा रहा है? Q2 में. ओके, 1 रीड करने के बाद कहां जा रहा है? 1 रीड करने के बाद ये जा रहा है Q3 में. और हो सकता है Q2 के बाद 0 रीड करने के बाद, सॉरी ये Q2 नहीं, ये Q2 के बाद 1 रीड करने के बाद Q3 में जा रहा है, राइट? और हो सकता है ये Q2 के बाद 0 रीड करने के बाद ये Q1 में जाए, ये भी हो सकता है. यस सर. है ना? तो ये मैं अभी एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं कि ये फाइनाइट ऑटोमाटा काम कैसे करता है. मतलब सिंपल है. फाइनाइट ऑटोमाटा इनपुट टेप से एट अ टाइम एक इनपुट सिंबल रीड करेगा. एक इनपुट सिंबल रीड करने के बाद उसका टेप हेड जो है वो आगे चला जाएगा टू रीड द नेक्स्ट इनपुट सिंबल. उस टाइम में आपका स्टेट चेंज भी हो सकता है, चेंज नहीं भी हो सकता है. अगर सेल्फ ट्रांजिशन है, सपोज अगर आप यहाँ पे बताओ, अगर 1 पे अगर मैंने सेल्फ ट्रांजिशन दिखा दिया Q0 पे, इसका मतलब क्या है? अगर आपका डेल करंट स्टेट आपका Q0 है और 1 रीड कर रहा है, तो ये कहां पे जाएगा? व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेट? बताओ. Q0 है, 1 रीड करने के बाद कहां जा रहा है? Q1. नहीं नहीं नहीं, उसी स्टेट पे सेल्फ ट्रांजिशन है ना. राइट, सॉरी, हाँ, Q0 पे 1 रीड करने के बाद कहां जा रहा है? Q0 पे. ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टेट चेंज होगा ही होगा. अगर सेल्फ ट्रांजिशन है उसी इस पे, उसी स्टेट से एक इनपुट सिंबल रीड करने के बाद अगर उसी स्टेट पे वापस आ रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ ट्रांजिशन. अंडरस्टूड? सर रिपीट 1. ओके, सो नाउ यू जस्ट अज्यूम्ड हियर कि ये मेरा स्टेट है Q0, राइट? 0 पे रीड करने के बाद कहां जाएगा वो? Q2 पे. अंडरस्टूड? ये वाला. यस. लेकिन अगर Q0 पे है, अगर 1 रीड किया उसने, तो कहां जा रहा है? यहीं से निकला और यहीं पे वापस आया ना, उसी स्टेट पे वापस आया. एरो देखो कैसा है. हाँ यस सर. राइट, तो इसको बोलते हैं सेल्फ ट्रांजिशन. Q0 पे कैसा है? सेल्फ ट्रांजिशन है ऑन 1 इनपुट सिंबल. तो मैंने कैसे लिखा इसका ट्रांजिशन फंक्शन? देखो, Q0 करंट स्टेट, अगर उसने 1 रीड किया उस स्टेट से, तो कहां पे पहुंचेगा? Q0 पे. मतलब उसका करंट स्टेट भी Q0 और नेक्स्ट स्टेट भी Q0. अंडरस्टूड? यस सर. तो इसका एक फाइनाइट ऑटोमाटा का क्या लिमिटेशंस है? फाइनाइट ऑटोमाटा का लिमिटेशंस है कि इसके पास कोई एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं होती. वो सिर्फ क्या करंट इनपुट सिंबल है, वो एक ही इनपुट सिंबल को याद रख सकता है. और जैसे ही उस इनपुट सिंबल को उसने रीड कर लिया, तो उसको ये नहीं पता होता है कि उसने पहले क्या, कौन कौन से इनपुट सिंबल उसने रीड किए हुए. अंडरस्टूड? दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइनाइट ऑटोमाटा. गेटिंग इट? यस सर. चलो, अब मैं वापस आता हूं यहाँ पे. जैसे हम लोगों ने फाइनाइट ऑटोमाटा पढ़ लिया, अब हम देखेंगे कि फाइनाइट ऑटोमाटा के 2 टाइप्स थे. फाइनाइट ऑटोमाटा विदाउट आउटपुट एंड फाइनाइट ऑटोमाटा विद आउटपुट. राइट, और फाइनाइट ऑटोमाटा विदाउट आउटपुट में हम लोगों ने देखा था कि देयर आर 2 टाइप्स अगेन, NFA एंड DFA. राइट, NFA stands for non-deterministic finite automata and DFA stands for deterministic finite automata. Getting it? ये तो आपको पता होंगे. यस सर.
ओके, दोनों में डिफरेंस बताएंगे आपको क्या है, एनएफए और डीएफए कैसा है, हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ ओके, चलो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि फाइनाइट ऑटोमाटा जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ दिस 5 टपल्स, वैसे एनएफए में भी यही 5 टपल्स होंगे, क्यू सिग्मा डेल क्यू जीरो एनएफ, और डीएफए में भी वही 5 टपल्स होंगे। तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस सिर्फ डेल का है। इसको मैं बोलूंगा डेल, ट्रांजिशन फंक्शन का डिफरेंस है, और इसका जो डेल है इसको मैं बोलूंगा डेल डैश। अंडरस्टूड? ओके Yes, sir. ओके, अब इसका डेल कैसे काम करता है देखो। ये क्या कर रहा था, डेल एनएफए का डेल कैसे काम कर रहा था, ये ले रहा था कोई तो भी एक स्टेट पे है, क्यू इज व्हाट, क्यू इज एनी आर्बिट्ररी स्टेट बिकॉज क्यू इज अ सेट ऑफ स्टेट्स, और कोई भी एक इनपुट सिंबल लेगा सिग्मा से, और एक इनपुट सिंबल पे एनएफए क्या कर रहा था कि इट इज गोइंग 2 स्टेट्स, मतलब मल्टीपल ट्रांजिशन हो सकते हैं। अब ये मल्टीपल ट्रांजिशन है क्या? ओके अब मैं बताता हूं आपको कि आपके क्यू में फॉर एग्जाम्पल 2 स्टेट है, एक Q0 है और एक Q1 है। अंडरस्टूड? Yes, sir. और सिग्मा जो है आपका 0,1 है, 0 एंड 1 में आपकी इनपुट सिंबल है, राइट? अब मुझे बताओ इस क्यू का पावर सेट क्या बनेगा? 2 मतलब क्या? पावर सेट मतलब क्या? पावर सेट मींस ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2 स्टेट्स। कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके? या तो नल एक भी नहीं रहेगा, या तो Q0 रहेगा, नहीं तो Q1 रहेगा, नहीं तो दोनों रहेंगे Q1 Q। यस और नो? Q0, Q1 है, sir. ओके सॉरी, Q0 Q1, Q0 Q1, या ये दोनों भी रह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपको अगर किसी ने कभी भी पूछा कि पावर सेट मतलब क्या, तो आपको क्या करना है, सिंपली हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन द सेट ऑफ स्टेट्स वो देखना है। यहाँ पे कितने स्टेट्स थे? 2, है ना? तो क्यू का नंबर क्या था? क्यू का नंबर ऑफ स्टेट्स प्रेजेंट इन दिस क्यू इज 2। सो हम लोग सिंपल कितने स्टेट्स आएंगे अगर ये पूछा आप लोगों ने, तो 2 की जगह पे 2 रख दो, देयर विल बी 4 पॉसिबल स्टेट्स विच विल कम अंडर द पावर सेट ऑफ स्टेट्स, राइट? अगर क्यू कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेट्स, कैपिटल क्यू कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेट्स, तो पावर सेट में कितने आएंगे बताओ? 9. 2 बेटा, दिस 2 इज सेम नंबर ऑफ स्टेट, यहां पे लिखेंगे पावर में, 2 इज 8. 8। 8, sir. अंडरस्टूड ना? सिंपल है। Yes, sir. इसका मतलब क्या है कि अगर, अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, ये ये जो मैं एरो देता हूं ना, ये इसका मतलब क्या है, ये मेरा इनिशियल स्टेट, राइट? सपोज इनिशियल स्टेट मेरा Q0 है और फाइनल स्टेट मेरा Q1 है, राइट? अब मुझे बताओ 0 पे सेल्फ ट्रांजिशन है, और 0 पे ही मैं यहां पे जा रहा हूं, Q1 पे जा रहा हूं, ओके? और यहाँ पे अज्यूम्ड करो कि ये 1 पे ट्रांजिशन है और यहाँ पे 0 पे ट्रांजिशन, ओके? सो टेल मी, अगर मेरा डेल Q0, 1 है तो कहां पे जा रहा है? इज देयर एनी ट्रांजिशन ऑन 1 फ्रॉम Q0? No, sir. नो।
तो इसका आंसर क्या आएगा? फाइव, विच बिलोंग्स टू द 2 का एक मेंबर है। मतलब मैंने यहाँ पे बोला था कि कोई भी एक स्टेट, कोई भी एक इनपुट सिंबल से इसमें से कोई ना कोई एक स्टेट में रहेगा। गेटिंग इट? यस सर। अब मुझे बताओ, डेल है Q0 पे 0, Q0 ऑन 0, कहां कहां जा सकता है वो? सेल्फ ट्रांजिशन है सर, वो फर्स्ट वाला। अच्छा, Q0 पे भी जा सकता है, और यहाँ पे और एक 0 पे है ना, Q1 पे भी जा सकता है। हाँ। सो दैट मीन्स व्हाट, ऐसा जरूरी नहीं है एनएफए में कि वो एक ही नेक्स्ट स्टेट पे जाए, वो एक से ज्यादा नेक्स्ट स्टेट पे भी जा सकता है। ओके। गेटिंग इट? यस सर। ओके, अब दूसरा कंफ्यूजन क्या रहेगा कि अगर आपका फाइनाइट ऑटोमाटा है, वो रीड कर रहा है और वो है जीरो, Q0 स्टेट पे। अब उसको कैसे पता चलेगा कि उसको ये वाला 0 रीड करके ये वाला ट्रांजिशन लेना है या फिर ये वाला ट्रांजिशन लेना है? अगर मुझे बताओ 0 1 0, ये वाला इनपुट स्ट्रिंग उसको एक्सेप्ट करना है, सो टेल मी दैट 0 1 0 एक्सेप्ट करेगा क्या? देखो, Q0 है, ये 0 रीड किया, कहां पे गया? Q1 पे, है ना? हेलो ओंकार। यस सर। हाँ, थोड़ा फास्ट, मुझे रिस्पांस ना थोड़ा जल्दी जल्दी चाहिए, मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके, हाँ भी बोल सकते हो, ना भी बोल सकते हो, बट यू जस्ट गिव मी द क्विक रिस्पांस। ओके सर। या, तो टेल मी दैट Q0 है, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? मतलब क्योंकि ये मेरा फाइनाइट ऑटोमाटा है, फाइनाइट ऑटोमाटा क्या है? इट्स अ लैंग्वेज एक्सेप्टर। ये बताएगा कि वो वैलिड है कि इनवैलिड स्ट्रिंग है। अब ये लैंग्वेज है 0 1 0, अब ये एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा देखेंगे हम। इसने क्या किया, Q0 है, ये 0 लिया, Q1 पे आया, फिर नेक्स्ट इनपुट सिंबल क्या था? 1, इसने रीड किया, उसी स्टेट पे रहा, फिर 0 रीड किया, अगेन उसी स्टेट पे रहा, स्ट्रिंग खत्म हो गई। यस सर। करंट स्टेट क्या है आपका? Q1। Q1, और Q1 क्या है? फाइनल है कि नॉन फाइनल स्टेट है? Q1 फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट है। तो सिंपल एक फंडा है यहाँ का फाइनाइट ऑटोमाटा का, अगर वो कोई भी स्ट्रिंग रीड करेगा, रीड कैसे करता है? लेफ्ट टू राइट, एक इनपुट सिंबल एट अ टाइम। रीड करने के बाद स्टेट चेंज भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, और पूरा रीडिंग करने के बाद आपको देखना है कि करंट स्टेट क्या है। पूरा स्ट्रिंग खत्म हो गया, करंट स्टेट आपका Q1 है, और Q1 इज फाइनल स्टेट, तो दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। ये स्ट्रिंग कैसा है? एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि ये रीड करने के बाद कहां पे पहुंच रहा है? फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा ओके सर। है। देन अब अगर गलती से इस एनएफए ने 0 जब रीड करना था, तो ये वाला ट्रांजिशन अगर ले लिया, यस सर। ये वाला पहला लिया 0, फिर वो क्या बोलेगा? दूसरा क्या है? 1, तो इसको 1। 1 पे तो कोई ट्रांजिशन दिखेगा ही नहीं, हाँ यस सर। तो वो उसी स्ट्रिंग को क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा। यस सर। क्यों? अभी देखो, एनएफए, एनएफए इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक, मतलब एम्बिग्विटी है उसमें, उसके पास क्या है? एक से ज्यादा रास्ते हैं जाने के। अब वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि Q0 पे 0 रीड करने के बाद ये वाला 0 रीड करे या फिर ये वाला 0 रीड करे, है यस ना? सर। तो जब वो एक 0, सपोज दोनों में से कोई तो भी रैंडम उसने एक डिसीजन ले लिया, ये सपोज ये वाला 0 रीड किया, ये वाला 0 रीड करने के बाद उसको पता था कि इसके पास दो रास्ते हैं, राइट? वो था यहाँ पे, एक 0 रीड करके वो Q0 पे आया, और एक 0 रीड करके उसको Q1 पे जाना है, लेकिन उसने ये वाला रास्ता चुन लिया। ये वाला रास्ता चुनने के बाद वो Q0 पे आया, Q0 के बाद उसको कोई आगे रास्ता ही नहीं मिला, क्योंकि 1 के लिए कोई ट्रांजिशन ही नहीं है। यस और नो? यस सर।
तो वो क्या करेगा ऐसे टाइम पे जहां पे भी डिसीजन लेने की बारी आई थी और एक उसने ब्रांच सिलेक्ट करके एक डिसीजन ले लिया और उस पाथ पे अगर उसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इट विल कम बैक टू द प्रीवियस स्टेट वेयर ही हैज टेकन दैट डिसीजन कि उसको कहां जाना था। तो Q0 पे वापस आएगा। इसको क्या बोलते हैं? बैक ट्रैकिंग। इसको क्या बोलते हैं? बैक ट्रैक। क्योंकि यहाँ पे उसने गलत डिसीजन ले लिया था तो वापस जाएगा ये Q0 पे एंड देन इट ही विल सिलेक्ट दिस Q1 और वो लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, राइट? तो इसके लिए इसको बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, क्योंकि यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिज्म है कि ये Q0 पे जीरो पे Q0 से जीरो पे रीड करके इस Q0 पे जाना है या Q0 से जीरो रीड करके Q1 पे जाना है। ये एम्बिग्युइटी उसके मन में हमेशा रहती है। अगर इनकेस अगर उसने रॉन्ग डिसीजन ले लिया तो बैक ट्रैकिंग इज इन्वॉल्व है और बैक ट्रैकिंग से क्या हो जाता है, आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा कोई भी प्रोग्राम का। यस यस सर। तो इसीलिए नॉन एनएफए को एल्गोरिथम में इंप्लीमेंट करना इट्स क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं डीएफए के पास। डीएफए क्या बोलता है कि कोई एक स्टेट हो, एक स्टेट से कोई भी एक इनपुट सिंबल पे एक ही नेक्स्ट स्टेट रहेगा, यूनिक नेक्स्ट स्टेट रहेगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। यस सर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा मेरे को? इसी फाइनाइट ऑटोमाटा में अगर मैं उसको डीएफए का फाइनाइट ऑटोमाटा बना रहा हूं, yes, I take a eraser. Only thing is that I need to change this. तो यहाँ पे मुझे क्या बताना पड़ेगा? अगर मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया तो कैन यू टेल मी कि कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ रहा है क्या उसमें? यहाँ पे देखो एक ही इनपुट सिंबल पे एक से ज्यादा ट्रांजिशन है क्या? अभी Q0 से 0 पे एक ही ट्रांजिशन है, Q0 से 1 पे एक ही ट्रांजिशन है, Q1 से 1 पे एक ही ट्रांजिशन है, Q0 से 0 पे एक ही ट्रांजिशन है, राइट? सो दैट मीन्स व्हाट, एक इनपुट सिंबल रेडी करने के बाद कहां जाना है, दैट इज वेरी फिक्स्ड, दैट इज वेरी डिटर्मिनिस्टिक। यस सर। सो दिस इज माय डीएफए। लेकिन अगर डीएफए अगर मेरे पास है तो इट इज क्वाइट सिंपल। अगर इसको मैंने इसके लिए अगर एल्गोरिथम इंप्लीमेंट किया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एक इनपुट सिंबल है, एक स्टेट है, एक स्टेट से उस इनपुट सिंबल पे रीड करने के बाद कहां जाना है, दैट इज वेरी मच फिक्स। और डीएफए को इंप्लीमेंट करना काफी आसान है प्रोग्राम में, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है। यस सर। राइट सो हम क्या करेंगे, हमेशा कभी भी हम लोग एनएफए डिजाइन करना सिंपल है लेकिन एनएफए का इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन इज डिफिकल्ट या फिर टाइम कंज्यूमिंग है। इसीलिए वी फॉलो वन एल्गोरिथम टू कन्वर्ट एनएफए टू इट्स इक्विवेलेंट डीएफए। हर एक एनएफए का एक डीएफए होता है तो उसकी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हमको फॉलो करनी होती है। फॉर एवरी एनएफए देयर एग्जिस्ट इट्स इक्विवेलेंट डीएफए। अंडरस्टूड? यस सर। सो क्या क्या समझ में आया अभी? देखो हम लोग कहां से शुरू किए थे। वी हैव स्टार्टेड विथ व्हाट? वी हैव स्टार्टेड विथ चॉम्स्की हायरार्की। चॉम्स्की हायरार्की के 4 टाइप के ग्रामर थे। 4 में से हम लोगों ने सिर्फ एक मतलब 4 तो देखे ही है लेकिन सबसे ज्यादा हम लोगों ने एक्सप्लोर किसको किया? टाइप 3 ग्रामर। टाइप 3 ग्रामर कैसा, कौन सा था? रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर से क्या जनरेट हुआ? रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए क्या है मेरे पास? फाइनाइट ऑटोमाटा। अंडरस्टूड? यस सर। फिर हम लोगों ने देखा कि रेगुलर ग्रामर का प्रोडक्शन रूल कैसे होता है। फिर हम लोगों ने आए, हम लोग फाइनाइट ऑटोमाटा पे आए। फाइनाइट ऑटोमाटा किस तरीके से काम करता है वो हम लोगों ने देखा। एक इनपुट टैब होता है, एक इनपुट सिंबल एट ए टाइम वो रीड करेगा। एक रीड करने के बाद वो नेक्स्ट इनपुट सिंबल रीड करेगा। द टैब हेड विल मूव टुवर्ड्स राइट बाय वन टू रीड द नेक्स्ट इनपुट सिंबल।
Okay, and during that time your state may change or may not change. So in this fashion उसने फाइनाइट ऑटोमाटा के पास कोई एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं होता है कि उसने क्या इनपुट सिंबल रीड किया उसको स्टोर करने के लिए. सिर्फ वो फाइनाइट ऑटोमाटा इज हैविंग वेरी लिमिटेड मेमोरी कि व्हाटएवर द इनपुट सिंबल इट इज गोइंग टू रीड, करंट इनपुट सिंबल ही उसको याद रहता है, उसको आगे के भी नहीं पता रहता और पीछे के भी नहीं पता रहता. फिर हम लोगों ने देखा कि फाइनाइट ऑटोमाटा दो टाइप के होते हैं, एक फाइनाइट ऑटोमाटा विदाउट आउटपुट और फाइनाइट ऑटोमाटा विद आउटपुट. फाइनाइट ऑटोमाटा विदाउट आउटपुट के दो टाइप थे, एनएफए और डीएफए, और फाइनाइट ऑटोमाटा विद आउटपुट के दो टाइप है, मूर मशीन एंड मीले मशीन. फिर हम लोगों ने देखा एनएफए क्या होता है और डीएफए क्या होता है, राइट. फिर एनएफए मतलब एनएफए और डीएफए को आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कोई भी एक स्टेट है, कोई किसी भी स्टेट से एक इनपुट सिंबल पे एक से ज्यादा ट्रांजिशन नहीं होने चाहिए. अगर एक से ज्यादा ट्रांजिशन है एक ही इनपुट सिंबल पे किसी भी एक स्टेट से, तो ऐसे सारे ट्रांजिशन डायग्राम को हम क्या बोलेंगे कि वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा है, एनएफए है. अंडरस्टूड? यस सर. ओके. दूसरा क्या, अगर यूनिक ट्रांजिशन है, मतलब एक इनपुट सिंबल पे किसी स्टेट से एक ही ट्रांजिशन आ रहा है, तो ऐसे ट्रांजिशन डायग्राम को हम क्या बोलेंगे कि दैट इज माय डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. यस सर. Okay, now so this we start with some previous year questions. GATE का questions हम लोग एक देखते हैं. So tell me whether this condition, whether this statement is true or false. You read this statement, can you tell me the answer? बोलो. ये क्या बोल रहा है कि किसी दो इंटीजर को भी ऐड कर सकता है क्या? फाइनाइट ऑटोमाटा कैन बी डिजाइन अ फाइनाइट ऑटोमाटा टू परफॉर्म एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स. ओके, यस ओंकार. तो दो नंबर लेना पड़ेगा ना उसको, एक नंबर यहाँ है दूसरा नंबर यहाँ है, राइट. और ये फाइनाइट ऑटोमाटा है सपोज आपका. फाइनाइट ऑटोमाटा एक, इसका एक नंबर लेना पड़ेगा और इसका एलएसबी, दोनों का दोनों रीड करना पड़ेगा एट ए टाइम. क्या फाइनाइट ऑटोमाटा ऐसा था कि वो एक टाइम पे दो नंबर रीड कर सकता था क्या आपका फाइनाइट ऑटोमाटा कभी भी? नो सर. नो, because finite automata is going to read only one input symbol at a time. So that is why this finite automata is not going to remember or not going to read the other data other data. मतलब at a time it is going to read only one data. तीसरा क्या है कि कैरी भी जनरेट हो सकता है. जब कैरी जनरेट होता है तो कैरी को भी रिमेंबर करने के लिए और स्टोर करने के लिए सम मेमोरी यू रिक्वायर्ड. बट फाइनाइट ऑटोमाटा के पास ऐसा कोई स्पेशल मेमोरी नहीं होता है. So that is why finite is, ये जो statement है ये मैं बोलूंगा कि this statement is false because it does not have any memory to remember the data or that number, what the number he has been read previously. He is having only the small amount of memory which is going to see what is the current input symbol.
and it is going to read only one input symbol at a time. So that is why this statement is false. Understood? Yes, sir. So statement is false. FSM can't be designed to add two integers of any arbitrary length because FSM have a finite memory and can't store integer of any arbitrary length. Done? Yes, sir. चलो अभी हम लोगों ने NFA देख लिया. NFA देखने के बाद DFA भी पता चल गया. और हम लोगों ने एक बताया यहाँ पे कि NFA को तो डिजाइन करना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स बैक ट्रैकिंग. तो बेटर वे है कि आप जो भी NFA होगा उस NFA को आप पहले DFA में कन्वर्ट कर दो और DFA में कन्वर्ट करने के बाद फिर DFA के लिए आप DFA को इंप्लीमेंट करो क्योंकि जो लैंग्वेज NFA एक्सेप्ट कर रहा है सेम लैंग्वेज DFA भी एक्सेप्ट करेगा क्योंकि हर एक NFA के लिए देयर एग्जिस्ट इट्स इक्विवेलेंट DFA. So do you know the process how to convert NFA to its equivalent DFA? हाँ बताओ. Yeah, Omkar, what we do now, we'll see कि how to convert NFA to its equivalent DFA first. है ना. अभी हम लोगों ने NFA देख लिया, DFA भी पता चल गया और NFA के ड्रॉबैक भी पता चल गए. राइट? Yes, sir. फिर हम लोग देखेंगे प्रोसेस कि क्या प्रोसेस है NFA को DFA में कन्वर्ट करने की. So NFA to DFA conversion देखेंगे. हम लोग देखेंगे NFA without epsilon closure first because there is a concept of epsilon closure. Epsilon closure with epsilon closure वाला बाद में देखते हैं. पहले हम लोग without epsilon closure देखते हैं. Right? So what is the definition? So it is defined as a finite automata consisting of finite state, input symbol and the intermediate state. Definitely हर एक finite automata में ऐसा होगा कि उसमें कुछ सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स रहेंगे, कुछ इनपुट सिंबल रहेंगे और कुछ इंटरमीडिएट स्टेट्स रहेंगे. फ्रॉम पर्टिकुलर स्टेट्स और अ गिवन इनपुट सिंबल मशीन एंटर्स इन मोर देन वन स्टेट्स. तो वो क्या है? NFA है. यस और नो? किसी एक, यहाँ पे क्या लिखा है? सी दैट कि किसी भी एक स्टेट से किसी एक इनपुट सिंबल पे आपका जो मशीन है वो क्या हो रहा है? एंटर्स इन मोर देन वन स्टेट्स. इसका मतलब क्या है? एक कोई तो भी पर्टिकुलर स्टेट ले लो आप. सपोज आपका स्टेट है Q1 और वो एक ही इनपुट सिंबल पे, जीरो वाले इनपुट सिंबल पे वो Q2 पे भी जा रही है, जीरो वाले इनपुट सिंबल पे वो Q3 पे भी जा रही है. राइट? इसका मतलब क्या है? Q1 से जीरो वाले इनपुट सिंबल पे देयर आर मोर देन वन ट्रांजिशन. इट एंटर्स इन मोर देन वन स्टेट. यस, उसी को हम लोगों ने NFA बोला था. Yes, sir. और यहाँ पे हम लोग इसको भी ध्यान नहीं देते, इप्सिलॉन को ध्यान ही नहीं देंगे हम. सो इप्सिलॉन हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे. इसका मतलब ई क्लोजर भी हमको देखना नहीं है. ई क्लोजर वाला बाद में देखते हैं, इप्सिलॉन क्लोजर वाला. सो NFA क्या है? NFA कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टपल्स? 5 टपल्स. Q, sigma, del, Q0 and F. Q क्या था?
Q is a finite non-empty set of states. Sigma finite set non-empty set of input symbol. और ये देखो ट्रांजिशन फंक्शन आपका, जैसे ये ट्रांजिशन फंक्शन आप ऐसा देखोगे Q इंटू सिग्मा इक्वल टू 2 रेस टू Q, ये क्या बताएगा आपको, ये NF है कि DF है? NF है। NF है। क्यों? क्योंकि एक इनपुट सिंबल पे एक से ज्यादा ट्रांजिशन आपको मिल सकते हैं। Q0 क्या है? Q0 क्या है? इनिशियल स्टेट है। और F क्या है? इट्स अ फाइनाइट सेट ऑफ फाइनल स्टेट। सो F को आप ऐसा ना दिखाते हुए एक सेट के फॉर्म में दिखाओ। सो इट विल इंडिकेट्स कि वो एक सिंगल नहीं है, इट इज अ सेट, इट इज अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। अब कन्वर्जन किस तरीके से करेंगे? अब कन्वर्जन जब करना है मेरे को, सो इफ देर आर Q स्टेट्स इन NFA, कितने स्टेट्स है NFA में? Q स्टेट्स है, राइट? सो कॉम्बिनेशन क्या है कि देन देयर इज अ चांसेस कि ज्यादा से ज्यादा DFA में कितने स्टेट हो सकते हैं? 2 रेस टू Q स्टेट्स। अंडरस्टूड? यस सर। तो ये ध्यान में रखना, ऐसे पे आपके क्वेश्चंस आते हैं, गेट के क्वेश्चंस, कि इफ देयर आर Q स्टेट्स इन NFA, then how many number of possible states will be there in your minimized DFA? So हम लोग बोलेंगे कि number of states, अगर आपको लिखना है यहाँ पे, the number of states in DFA will be less than or equal to 2 raised to Q, right? ज्यादा से ज्यादा 2 raised to Q, लेकिन उससे कम भी रह सकते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। गेटिंग इट? चलो, देन स्टेप 2। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फिर उसका पावर सेट ऑफ Q निकालना पड़ेगा, है ना? यस सर। ओके, एंड मैंने बताया आपको कि पावर सेट ऑफ Q कैसे निकालते हैं। सो जो भी पावर सेट ऑफ Q निकाला, तो दिस विल बी द नंबर ऑफ स्टेट्स इन DFA। वो उतने स्टेट्स DFA में हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, फिर वो मिनिमाइज होंगे, कम कम भी हो सकते हैं और उतने भी रह सकते हैं, राइट? फिर विल टेक वन एग्जांपल। तो एक इसका एक एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि अगर मेरा Q जो है NFA में, इफ इट कंसिस्ट ऑफ से 3 स्टेट्स Q0, Q1 और Q2, सो टेल मी इसका 2 रेस टू Q क्या रहेगा? पावर सेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो मुझे पता है कि कितने रह सकते हैं नंबर? 8। 2 रेस टू Q इज इक्वल टू व्हाट? 2 रेस टू 3 इज इक्वल टू 8। इतने स्टेट्स आ सकते हैं, तो कौन कौन से आएंगे? पहले तो नल आ सकता है, 5 आ सकता है, फिर एक Q0 भी आ सकता है, Q1 भी आ सकता है और Q2 भी आ सकता है, फिर दो दो जोड़ी, फिर हम बोलेंगे यहाँ पे कि Q0 Q1 भी आ सकता है, Q0 Q2 भी आ सकता है और Q1 Q2 भी आ सकता है। यस? यस सर। और एक ऐसा रह सकता है कि Q0 पे भी ट्रांजिशन है, Q1 पे भी और Q2 पे भी है। सो टेल मी कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सारे के सारे स्टेट्स आ गए। इस तरीके से यू कैन फाइंड इट आउट इजीली द पावर सेट ऑफ स्टेट्स। यस सर। ओके, सो फाइनल सेट्स ऑफ DFA, स्टेप 2 में क्या करेंगे? जैसे ही पावर सेट ऑफ फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने,
तो हम लोग सारे स्टेट्स के लिए ट्रांजिशन फाइंड आउट करेंगे, राइट? और अब सारे स्टेट के लिए ट्रांजिशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, सपोज जो मेरे सारे स्टेट्स आ गए थे ना, तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से मैं इनपुट सिंबल लूंगा। ये मेरा ट्रांजिशन टेबल है, ये सिग्मा, ये क्यू। यहाँ पे लिखेंगे 0 इनपुट सिंबल, 1 इनपुट सिंबल, और यहाँ पे सारे स्टेट्स। तो 5 लिखने की जरूरत नहीं है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम Q0, फिर Q0 लिखेंगे, फिर Q1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे Q2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे Q0, Q1, उस पर ट्रांजिशन फाइंड आउट करो। और इस तरीके से मैं सारे जो 7 और 8 एंट्रीज जो थी वो इधर आ जाएंगी, राइट? अगर 5 को निकाल दिया तो टोटल 7 एंट्रीज विल बी देयर। और हर एक स्टेट से 0 पे कहां जा रहा है, 1 पे कहां जा रहा है, वो व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेट, वो नेक्स्ट स्टेट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये आपका करंट स्टेट, ये करंट इनपुट सिंबल, इसको रीड करने के बाद व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेट, दैट वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन हियर। सपोज Q0 से 0 पे रीड करने के बाद वो Q1 पे जा रहा है, तो यहाँ पे मैं Q1 लिखूंगा। अंडरस्टूड? यस सर। तो इस तरीके से मुझे ट्रांजिशन टेबल फाइंड आउट करने पड़ेंगे डीएफए। देन डीएफए के ट्रांजिशन टेबल फाइंड आउट करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा कि जितने भी स्टेट्स आ रहे हैं, जो जो नए स्टेट्स मुझे मिलते जाएंगे, उन हर एक नए स्टेट के लिए मुझे एक 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 एक, एक ट्रांजिशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो विल सी वन प्रॉब्लम। तो आप एक प्रॉब्लम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो सी दैट हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर। एक एनएफए है। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन दिस एनएफए? 4 स्टेट। 4 स्टेट्स, राइट? तो 4 है, तो इसका 2⁻Q में कितना आएगा बताओ? 2:4। 2⁻4 मतलब कितने स्टेट्स आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा डीएफए में? 16। 16। 5 को छोड़ा तो टोटल 15 स्टेट कंसिडर करना पड़ेगा। यस सर। ओके। वो 15 स्टेट में से कोई ना कोई स्टेट्स आपको मिलेंगे, सारे के सारे मिल सकते हैं, या फिर उसमें से कुछ छोटे कम कम भी मिल सकते हैं, राइट? तो मैं बताऊंगा आपको। अब ये आपका ट्रांजिशन टेबल, राइट? तो ये आपका ट्रांजिशन टेबल इस तरीके से सिग्मा 0 1 और ये Q0 Q1 Q2। अब ये आपको ट्रांजिशन टेबल देख के पता चलेगा क्या कि ये एनएफए है कि डीएफए है? यस। Yes, can you tell me whether it is NFA or DFA? सर हमें एक क्वेश्चन ही दिया है ना डीएफए में करने का। तो हाँ, NFA लेकिन आपको पहले पता चलना चाहिए कि एनएफए है कि डीएफए है। देखो यहाँ पे देखो कितने ट्रांजिशन दिया है, कितने स्टेट है? 2। हाँ। इसका मतलब क्या है? ये अगर Q0 है, Q0 से 1 वाले ट्रांजिशन पे कहा जा रहा है? एक ट्रांजिशन जा रहा है Q0 पे, और एक दूसरा ट्रांजिशन जा रहा है Q1 पे। अंडरस्टूड? हाँ, तो एनएफए में है। तो ये एनएफए हो गया, क्योंकि एक ही इनपुट सिंबल पे एक से ज्यादा ट्रांजिशन है। यस सर। तो जैसे ही आपको ट्रांजिशन टेबल में ऐसी कोई एक से ज्यादा एंट्री दिखी, तो यू कैन स्ट्रेट वे से दैट कि ये आपका क्या है? एनएफए है। यस सर। और टेल मी विच वन इज योर इनिशियल स्टेट? इनिशियल स्टेट Q0। Q0, क्योंकि यहाँ पे
ये जो दिया है ना, मैं इसको क्या करूंगा, मेरे 5 टपल्स जो है उसमें ले लूंगा। ये मेरा कैपिटल क्यू हो गया, ये मेरा सिग्मा हो गया, ये तो डेल फंक्शन है जो कि आपको दिया हुआ है, ये टेबल, टेबल मतलब डेल फंक्शन। और ये था आपका इनिशियल स्टेट Q0 और ये आपका है फाइनल स्टेट। फाइनल। तो जो भी इनिशियल स्टेट है उसको हम लोग एरो दे देंगे, ये पता चलेगा कि ये मेरा इनिशियल स्टेट है। और जो मेरा फाइनल स्टेट Q3 है उसको मैं स्टार मार्क करता हूँ, दैट इंडिकेट्स कि ये मेरा फाइनल स्टेट। अंडरस्टूड? यस सर। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे कि वी स्टार्ट विद द इनिशियल स्टेट। और मुझे पता है कि मेरे जो डीएफए में आने वाले स्टेट है वो कितने स्टेट हो सकते हैं, मैक्सिमम 2⁻Q। और यहाँ पे 2Q का नंबर कितना है, 2⁻4। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम कितने स्टेट्स हो सकते हैं, 16। मतलब लेस देन और इक्वल टू 16 स्टेट्स विल बी देयर इन माय डीएफए। यस सर। ठीक है, तो ये जब आपका ट्रांजिशन टेबल है तो मैं बोलूंगा कि ये मेरा इनिशियल स्टेट है, ये मेरा फाइनल स्टेट है। तो हम क्या करेंगे, सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड से हम बनाना शुरू करते हैं कि वी स्टार्ट विद द इनिशियल स्टेट। मैंने कहां से शुरू किया, देखो Q0 से स्टार्ट किया, Q0 लिखा मैंने। ठीक है, अब मुझे बताओ Q0 से 0 पे कहां पे जा रहा हूं मैं, Q0 पे जा रहा है, सेल्फ ट्रांजिशन हो रहा सेल्फ ट्रांजिशन है। है। यस सर। तो देखो Q0 से 0 पे कहां जा रहा हूं, यहां पे, Q0। राइट। अब मुझे बताओ 1 पे कहां जा रहा हूं मैं, यहां से 1 पे एक है सेल्फ ट्रांजिशन यस। और एक है Q1। Q1। अब मैं Q1 पे आता हूँ, Q1 पे 0 पे कहा जा रहा हूँ, Q2। 0 पे भी Q2 है और 1 पे भी Q2 है। यस सर। तो दो एरो दिखाने के बजाय मैं इसको ही सेपरेट आउट कॉमा से कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 0,1 दिखाया तो दूसरा ट्रांजिशन दिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसका मतलब 0 पे भी है 1 पे भी है, पैरेलल पाथ है। यस सर। और मैं अभी Q2 पे हूँ, 0 पे कहा जा रहा है, Q3। Q3। 0 और and मैं 1। ऐसा भी दिखा सकता हूँ दूसरा भी पैरेलल पाथ, और 1 पे भी कहा जा रहा हूँ Q3। और Q3 से कोई ट्रांजिशन है क्या, 0 और 1 पे नहीं है, नल ट्रांजिशन है, तो यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं। अंडरस्टूड? यस सर। चलो अभी हम डीएफए कैसे बनाएंगे देखो। सी दैट, इसकी जरूरत नहीं थी, चलो ठीक है। तो हम लोग लेते हैं पहले, ओके, दिस एक्स मतलब क्या है, विल टेक वन स्टेट एट ए टाइम। वी स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल सेट। इनिशियल सेट क्या था मेरा, Q0। ओके, अब ये मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, ओके। सो टेल मी, ये टेबल मैंने बनाया, इसमें लिया मैंने स्टेट्स। ओके, स्टेट लेने के बाद मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू व्हाट, ई क्लोजर ऑफ x। ई क्लोजर ऑफ x का मीनिंग अभी मत समझो आप, ई क्लोजर ऑफ स्टेट इज सेम स्टेट, क्योंकि इप्सिलॉन क्लोजर है ही नहीं यहाँ पे, तो इट कंसिस्ट ऑफ Q0 ओनली। जो यहाँ पे है वही यहाँ पे रहे। डन? ओके सर। या तो अभी क्या, क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जब इप्सिलॉन क्लोजर वाला देखेंगे तब ये वाला पार्ट आएगा। तो फिलहाल तो इप्सिलॉन क्लोजर नहीं है, तो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है। तो हम लोग देखेंगे Q0 से 0 पे कहां पे जा रहे हैं। ओके, दिस इज 0, 0 पे ट्रांजिशन यहाँ पे देखेंगे, 1 पे ट्रांजिशन यहाँ पे देखेंगे। जो ये वाला है वही वाला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। सो टेल मी, Q0 से 0 पे कहा जा रहा था मैं, Q0 पे, यस। यस सर। यस सर।
और Q0 से 1 पे कहाँ जा रहा था? Q0 and Q1. Q0 एंड Q1। तो पहले वो जो दो सेपरेट स्टेट थे, अब मैं उसको दो सेपरेट स्टेट नहीं कंसिडर करूंगा, मैं उसको बोलूंगा अभी Q0 Q1 नाम का एक ही स्टेट है, और उसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा। Okay, sir. सो नाउ टेल मी, अब इस एक्स में ऐसे कौन से यहाँ और यहाँ पे कौन सा नया स्टेट है जिसको मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है? तो यहाँ पे मुझे दो स्टेट मिले, एक Q0 जो जो मैंने ऑलरेडी कंसिडर कर चुका हूं, एक नया स्टेट मिला मेरे को, राइट? दिस इज द न्यू स्टेट आई गॉट। Yes, sir. तो अब ये नए स्टेट को मैं यहाँ पे रखूंगा, एक दिस इज अ न्यू स्टेट Q0 Q1, और इसका ई क्लोजर भी वही रहेगा Q0 Q1। डन। और Yes, अब sir. मैं Q0 Q1 के लिए जीरो पे ट्रांजिशन देखूंगा। अब देखो Q0 Q1, तो यहाँ पे मैं इसको एक बार आपको बता देता हूं, उसके बाद में हम लोग शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको इस तरीके से डेल ट्रांजिशन फाइंड आउट करना है, किसका? Q0 Q1 ऑन जीरो, तो आप क्या करोगे? आप कौन सा टेबल रेफर करोगे? एनएफए का टेबल। ये तो डीएफए का टेबल है ना आपका। Yes, sir. तो एनएफए का टेबल रेफर करने के लिए आप क्या करोगे? ये क्या बोलता है, जब एक से ज्यादा स्टेट है तो आप क्या करो, आप उसको स्प्लिट कर दो, Q0 ऑन जीरो लिखो, यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करो, और डेल Q1 ऑन जीरो लिखो। सो टेल मी, Q0 ऑन जीरो कहां जा रहा है? Q0 ऑन जीरो, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेट? Q0 on 0, Q0 पे जा रहा है. Q0 पे ही जा रहा है। यूनियन Q1 ऑन जीरो, Q1 on 0, Q2 पे जा रहा है. Q2 पे जा रहा है, तो यहाँ पे मैं Q2 लूंगा। तो इन दोनों का यूनियन ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया, तो क्या होगा ये? Q0 Q2. Q0 Q2, राइट? तो Yes, इसको sir. मैं बोलूंगा अभी Q0 Q1 से जीरो पे ट्रांजिशन अगर लिया तो कहां जाएंगे हम लोग? विल गो टू द Q0 Q2, जो पहले सेपरेट स्टेट थे, अभी ये मेरे एक ही स्टेट बने। अंडरस्टूड? Yes, sir. नाउ टेल मी, ये मेरा करंट स्टेट है Q0 Q1, अभी मैं 1 पे जा रहा हूं। अब देखेंगे Q0 से 1 पे जाएंगे तो कहां जाएंगे? Q0 Q1, Q0 से 1, Q0 Q1. Yes. और दूसरा कौन सा स्टेट है मेरा? Q1। Q1 से 1 पे Q1, Q2. Q2। इसका मतलब इन दोनों का यूनियन ऑपरेशन करना पड़ेगा, Q0 Q1 यूनियन Q2। इसका मतलब क्या रहेगा ये? Q0 Q1 और Q2। समझ आई क्या बात? Yes, sir. सर आप शॉर्टकट मेथड बताने वाले थे ना, और कुछ भी? हाँ, शॉर्टकट मेथड बोले तो इसी तरीके से, मतलब सारे स्टेट्स हम लोग नहीं लेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर ऑल 15 स्टेट्स, ओके सर. है ना? जो जो जरूरत है उसी स्टेट को हम लोग लेंगे। यस सर. यस. गेटिंग इट? सो नाउ टेल मी, ये स्टेट भी हो गया, ये स्टेट भी हो गया, ये नया स्टेट मिला, यस सर. तो उस नए स्टेट को हम कंसिडर करेंगे कौन सा? Q0 Q2। तो यहाँ पे वही रिपीट होंगे Q0 Q2। गेटिंग इट? तो इस तरीके से अभी Q0 Q2 पे हम जीरो पे ट्रांजिशन सर निकालेंगे, पहले Q0 Q0 वाला Q1 लेंगे, फिर Q2 Q2 लेंगे ऑन ना जीरो लेंगे। सर? नया स्टेट Q0 Q1 Q2 आएगा ना? नहीं नहीं, ये भी तो है ना Q0 Q2। ये पहला लेंगे, फिर ये, फिर बाद में इसको भी कंसिडर करेंगे। ये भी तो नया है ना, हम लोगों ने इसको कंसिडर किया था Q0 Q1। Q0 Q2 नया मिला, फिर से उसको उसको भी लिया, और उसके बाद इसको भी लेंगे, ओके सर. है ना? सो टेल मी, फटाफट बताओ अभी Q0 Q2, Q0 और Q2 पे जीरो पे ट्रांजिशन लेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? Q0. और Q2 से जीरो पे, दोनों दोनों के लिए लेना पड़ेगा ना। Q0 Q2 मेरा करंट स्टेट है अभी, Q2 से 0 Q3. मतलब Q0 Q3।
यस सर। और यहाँ पे बताओ 1 पे Q0 Q2, Q0 Q2 क्यू और जीरो 1 क्यू बोले क्यू जीरो Q0 क्यू Q1 वन और Q3। Q3। सो देखो Q0 Q1 और Q3 डन। फिर ये मेरा स्टेट यस ले लिया, ये नया स्टेट मिला तो इसको भी लेना पड़ेगा Q0 Q1 Q2। सेम यहाँ पे Q0 Q1 Q2। इस तरीके से क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू टेक ऑल द स्टेट्स। सो सी हियर यू आर गोइंग टू गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ, ए टेबल। और एक्चुअली कितने स्टेट्स आने चाहिए थे टोटल? 15। 15। लेकिन कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओनली 8। बाकी की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो सर डन। कैसे समझेगा, कैसे हाँ, समझेगा अपने को, कैसे समझ में आएगा? जब मैं 15 ये तो करते जाऊंगा ना तो सारे जो यहाँ के स्टेट्स अगर ये वाले कॉलम में आ गए या ये वाई वाले कॉलम में, एक भी स्टेट यहाँ अच्छा। पे नहीं छूटा, कुछ टाइम के बाद ऐसा आ जाएगा कि ये वाला स्टेट भी कंसिडर कर लिया, ये वाला स्टेट भी कंसिडर कर लिया, और नए वाले जो भी आ गए वो सारे मैंने कंसिडर कर लिए। अभी यहाँ पे एक्स और वाई में कोई ऐसा स्टेट बचा ही नहीं है जो ये वाले कॉलम में नहीं आया, तो वहां जाके रुक ओके। जाएंगे। यस सर। है ना? यस सर। है ना? अभी हम लोग एक एक करेंगे तो इट विल टेक 1 आवर। यस सर। Right. So for that, what you do, you take the screenshot of this question. You take the screenshot of this table and you try to create it, whether you are getting the same table or not. ओके सर। Fine. तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये टेबल आ गया तो मैं इसको मार्किंग कर देता हूं कि ये मेरा इनिशियल स्टेट था Q0, और जहां जहां भी Q3 आया था, क्योंकि Q3 मेरा फाइनल स्टेट था यहाँ पे, यस सर। तो जहां जहां भी Q3 आया था उसको मैं बोलूंगा कि वो सारे स्टेट जो है वो मेरे फाइनल स्टेट थे। ये भी मेरा फाइनल स्टेट है, ये भी मेरा फाइनल स्टेट है, ये भी मेरा फाइनल स्टेट है, और ये भी मेरा फाइनल स्टेट यस सर। है। डन। तो उसी तरीके से X में जो है वही Y में है, तो जो Y जो X में लिखे थे मैंने, ये Y में भी वही मेरे इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट्स रहेंगे। यस सर। तो अभी देखो, क्या मैं इसको और रिड्यूस कर सकता हूं? क्या यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्रीज है? तो देखो इसने क्या किया, अगर अभी आपको जो है ना, ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े नंबर्स लिखने पड़ेंगे ना, तो हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं कि इसको नाम हम कुछ भी दे देंगे। सपोज इसको रीनेम अगर मैंने दे दिया ना, Q0 को अगर मैंने दे दिया, इसको अगर नाम दिया मैंने A, इसको अगर नाम दिया मैंने B, इसको नाम दिया C, इसको अगर नाम दिया D, ये मेरा बन गया E, ये मेरा बन गया F, ये मेरा बन जाएगा G, और ये मेरा बन जाएगा H। राइट? तो देखो कितना छोटा हो जाएगा ये टेबल मेरा। ये अगर A मैं लिखता हूं, B, ये C, ये D, ये E, ये F, ये G, और ये मेरा H है। राइट? उसमें से E, F, G और H जो है वो क्या है, मेरे फाइनल स्टेट है, और A जो है मेरा इनिशियल स्टेट है, रीनेम किया मैंने। सो देखो Q0 मतलब क्या था, A, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया A। Q0 Q1 क्या है, B, तो यहाँ ये हो गया B। डन। अब देखो Q0 Q2 क्या है, C, और Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2 क्या है, D। C पे आया Q0 Q3, देखो Q0 Q3 क्या है, E, है ना? और Q0 Q1 Q3 क्या है, Q0 Q1 Q3 क्या है, F। डन। फिर D पे आया, D क्या है मेरा, Q0 Q1 Q2, फिर Q0 Q1 Q3, Q0 Q2 Q3, तो Q0 Q2 Q3 क्या है, G, यहां लिखेंगे हम G। और D से 1 पे क्या आ रहा है, Q0 Q1 Q2 Q3, Q0 Q1 Q2 Q3 क्या है, H, यहाँ पे लिख दिया H। E पे आया, ये बोलता है कि Q0 बोले तो A, फिर 1 पे कहा है Q0 Q1, Q0 Q1 बोले तो कौन सा है,
बी। बी, यहाँ पे लिख दिया मैंने बी। और एफ पे आया, एफ पे आया Q0 Q2, Q0 Q2 कौन सा स्टेट है? सी। सी। और Q0 Q1 Q2 डी। डी। फिर ये क्या है? Q0 Q3 ई। ई। और Q0 Q1 Q3 एफ। Q0 Q2 Q3 जी। और ये एच। एच। डन ना? यस सर। तो इस तरीके से जो इतना बड़ा टेबल था उसको मैंने छोटा बना दिया। अब आपको क्या करना है, ये क्या मैं इसको और ये रिड्यूस हो सकता है? तो हम लोग क्या करेंगे, कहां कहां डुप्लीकेट एंट्रीज है वो देखेंगे। और अगर डुप्लीकेट एंट्रीज यहाँ पे मिली मेरे को, तो एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ रिप्लेस हो सकता है। तो रिप्लेस का रूल क्या है कि नॉन फाइनल स्टेट के साथ रिप्लेस होगा। नॉन फाइनल रिप्लेस विथ अनदर नॉन फाइनल स्टेट। और फाइनल स्टेट रिप्लेस विथ अनदर फाइनल स्टेट। गेटिंग इट? सो यहां पे मैं देखूंगा कि ये वाला कॉलम यहां पे भी सी डी है और यहां पे भी सी डी यस सर। है ना? तो यस। यहां पे मेरे हिसाब से क्या है, यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्रीज है। लेकिन भले ही यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्रीज हो, लेकिन मैं देखूंगा कि किस कौन से स्टेट के लिए वो डुप्लीकेट एंट्रीज है। एक है स्टेट बी, बी और दूसरा क्या है? एफ। एफ। लेकिन बी कैसा है? बी इज अ नॉन फाइनल स्टेट एंड एफ इज अ फाइनल स्टेट। ये कौन सा स्टेट है मेरा? नॉन फाइनल है। नॉन फाइनल। और ये कौन सा है? फाइनल स्टेट है। तो फाइनल। इसकी वजह से इवन दो एंट्रीज मेरी डुप्लीकेट है, लेकिन मैं किसी नॉन फाइनल फाइनल के साथ या फिर फाइनल नॉन फाइनल के साथ रिप्लेस नहीं कर सकता। अंडरस्टूड? ओके सर। वैसे ही यहाँ पे भी देखो, ए बी यहाँ पे है और यहाँ पे भी ए बी है, लेकिन ए मेरा नॉन फाइनल है, ई मेरा फाइनल है। तो इसके लिए फाइनल। इवन दो डुप्लीकेट एंट्रीज यहाँ पे मिल रही है, बट आई कैन नॉट रिप्लेस इट। दूसरा देखो, यहाँ पे भी जी एच है, यहाँ पे भी यस। जी एच है, लेकिन यहाँ पे डी है और यहाँ पे एच है। डी मेरा नॉन फाइनल है, एच मेरा नॉन फाइनल फाइनल। है। तो यस इसकी सर। वजह से अगर ये दोनों भी नॉन फाइनल होते या फिर फाइनल फाइनल होते, तो एक स्टेट को मैं दूसरे स्टेट के साथ रिप्लेस करके इसका साइज जो है वो कम कर सकता था। अंडरस्टूड? यस सर। Okay, so this would be the assignment problem for you once you understand this. तो यहाँ पे this no replacement is possible, so this would be your final DFA. Done? यस सर। So you note down this problem. डन सर। Done? Sure.
तो एक खत्म हो गया. Now we'll come back to our gate questions. Okay. So what we do now, तो जो हम लोगों ने पढ़ा अभी उसके बेसिस पे so I'll take some question. Yeah. इसको मैं छोटा ही कर देता हूँ. Now it is visible ना? Yes, sir. So see that this is again a gate question which was asked in 2001. So can you read this question? Given an arbitrary non-deterministic finite automata with n states, the maximum number of states in an equivalent minimized DFA is at least. So ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था. To option B. ऑप्शन बी, राइट. सो वो अगर क्वेश्चन मैंने देख लिया, अगर वो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर्ड है, तो आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन. क्योंकि व्हाट इट सेज दैट कि जो मेरा एनएफए है, ओके, एनएफए में कितने स्टेट थे? एन स्टेट्स आर देयर इन माय एनएफए. तो वही अगर मुझे डीएफए में बनाना है, डीएफए में कितने स्टेट्स हो सकते हैं? लेस देन और इक्वल टू 2 raised to n, 2 raised to n. right? The power sets of states. Good. ओके. चलो, एक डीएफए है. This question was asked in 2003. So can you read this question again? Consider the following deterministic finite state automation. एक N. ऑटोमाटा दिया हुआ है, ठीक है? Yes. ओके. Let S denote the set of 7-bit binary strings in which the first, the fourth, and the last bits are 1. The number of strings in S that are accepted by M is. ओके. क्या क्वेश्चन समझा? कि ये जो फाइनाइट ऑटोमाटा है, इट इज एक्सेप्टिंग व्हाट? 7-bit बाइनरी स्ट्रिंग. अंडरस्टूड? ठीक है. अब मैं इसका स्लाइड शो करता हूं सो दैट यू कैन गेट अ बिगर व्यू ऑफ इट. अंडरस्टूड? तो या तो क्वेश्चन ये है कि ये फाइनाइट ऑटोमाटा जो है, दिस इज द इनिशियल स्टेट. ना, ये जो पहला है ये मेरा इनिशियल स्टेट है, यहीं से शुरू हो रहा है. उसको थोड़ा सा छोटा करके रखना पड़ेगा मेरे को, बट यू अज्यूम दैट कि दिस इज योर इनिशियल स्टेट, यहाँ से शुरू हो रहा है. और ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है? 7-bit बाइनरी स्ट्रिंग. तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट. तो ये मैं नंबर भी दे देता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ये 7-bit है. वो 7-bit में से कौन से बिट 1 है? फर्स्ट, फोर्थ एंड लास्ट. Yes. तो फर्स्ट बिट इज 1, फोर्थ बिट इज 1 Fourth एंड द लास्ट बिट इज 1. ओके. Yes, sir. अब बचे कितने हैं?
4 बिट्स। 4. ओके, अब मुझे बताओ, अगर 4 बिट्स के अगर मैंने सारे कॉम्बिनेशन लिए तो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं मेरे पास? 16. 16 कॉम्बिनेशन, राइट। सो मुझे यहाँ पे क्या करना है, आई नीड टू चेक विथ ऑल 16 कॉम्बिनेशन। और वो 16 कॉम्बिनेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, या 16? Yes, sir. Yes or no? So it is going to accept all 16, मतलब maximum 16, but out of this 16 which strings will be accepted by this finite automata, वो मुझे देखना है, right? तो पहले मैं क्या करूंगा, I'll take the first 4 combination, 4 कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे। 4 कॉम्बिनेशन मतलब कौन से? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 and 0 0 1 1। यस, मतलब ये मेरी सेकंड बिट, ये मेरी थर्ड बिट, ये मेरी फिफ्थ बिट और ये मेरी सिक्स बिट। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो देखो एक्सेप्ट करता है क्या, मतलब मेरी स्ट्रिंग क्या बनेगी। देखो अभी अगर ये वाला स्ट्रिंग मैंने ले लिया, ये वाला अगर है कि नहीं वो देख रहा हूं मैं, तो मेरी स्ट्रिंग क्या बनेगी? 1 0 0 1 0 0 1। हाँ या ना? अरे यस और नो? हेलो, यू आर नॉट ऑडिबल एक्चुअली। Yes, sir. हाँ, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। मतलब ये स्ट्रिंग कैसे बनी 1 0 0 1 0 0, क्योंकि ये जो जो ब्लैंक स्पेस थी वहां पे मैंने ये वाले डाल दिया 0 0 0 0। डन? Yes, sir. तो टेल मी ये एक्सेप्ट करता है क्या? देखो ये डीएफए है, तो डीएफए है तो यूनिट ट्रांजिशन रहेंगे हर एक इनपुट सिंबल पे। तो देखो 1 ये मैंने रीड किया, यहाँ पे आया, देन 0 0, देन दिस 1, राइट, एंड देन 0 0 एंड दिस 1। एक्सेप्ट हुआ, फाइनल सेट पे आया मैं आखिरी में। Yes, sir. तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। Yes, sir. दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पे क्या स्ट्रिंग बनेगी मेरी? 1 0 0 1 0 1 1। Yes, sir. तो देखो एक्सेप्ट होता है क्या? 1 0 0 1 1. 0 1 1। एक्सेप्ट हुई। Yes, sir. ये भी एक्सेप्ट हो गई, 2 स्ट्रिंग हो गई। इसने बताया कि ऐसे कितने स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगे, वो चेक करना है। यहाँ पे देखो क्या स्ट्रिंग बनेगी, 1 0 0 1 1 1 1 0. 1 0 1। करेक्ट है? Yes, sir. तो ये एक्सेप्ट करती है, देखो 1 0 0 1 1. 1 0 1। Yes, sir. ये भी एक्सेप्ट होगी। यहाँ पे चेक करो, 1 1 0 0 0. 0 1 1 1 1. 1 1। करेक्ट है? Yes, sir. तो 1 0 0 1 1 1 1 एक्सेप्ट हुई। Yes. Yes, sir. तो ये भी एक्सेप्ट होगी। तो फिर हम लोगों ने ये 4 कॉम्बिनेशन देख लिए। अभी हम जाते हैं दूसरे 4 कॉम्बिनेशन के पास। दूसरे 4 कॉम्बिनेशन क्या होंगे बताओ? 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 और 0 1 1 1। यस? Yes, sir. तो टेल मी ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये क्या बनेगा? 1 0 1 0, सॉरी 1 0 1 1 0 0 1। करेक्ट है? ये क्या कॉम्बिनेशन बनेगा देखो, 1 0 1 1 1 0 1 0 1। 1 1. Yes. करेक्ट?
Then this is 1011 101 और ये क्या कॉम्बिनेशन बनेगा देखो 101 1 111 यस डन ना। यस सर। अब देखो ये वाला स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है क्या 101 1 वापस आ गए फिर 1001 1001 एक्सेप्ट हुआ सर ये डीएफए है ना तो इधर बैक ट्रैकिंग होगी क्या? नहीं ना डीएफएम में कभी बैक ट्रैकिंग नहीं होता। बैक ट्रैकिंग बोले तो वापस उसी स्टेट पे जाना जहां पे दो ट्रांजिशन थे, यहाँ पे डबल ट्रांजिशन है ही नहीं ना। बैक तो ट्रैकिंग बोले फर्स्ट तो अगर एरो दिखा रहा है तो आप बैक ट्रैकिंग जाओ, अगर एरो नहीं दिखाया फिर भी आप वापस जा रहे हो तो उसको बैक ट्रैकिंग बोलते हैं, जहां पे हमने गलत डिसीजन ले लिया। ओके सर। सो टेल मी वेदर दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। एक मिनट है सर। 1 एक्सेप्टेड सर। एक्सेप्टेड, वेरी गुड। चलो दूसरी ये बताओ 1 0 1 1 0 1 1 एक्सेप्टेड सर। एक्सेप्टेड। यस सर। 1 हाँ 0 1 1 देखो 1 गया फिर 0 0 गया फिर 1 आके वापस आ गया फिर दूसरा भी एक 1 है यहाँ पे आ गया फिर 0 1 1 है 0 0 1 1 फाइनल स्टेट पे आया क्या। एक्सेप्ट कब करेगा जब मैं फाइनल स्टेट पे अच्छा रहूंगा। ओके सर ये इनिशियल स्टेट पे आ गया। हाँ इनिशियल मतलब कोई भी बाकी के स्टेट पे अगर आ रहा है तो रिजेक्ट कर रहा है। ओनली इट विल एक्सेप्ट द स्ट्रिंग व्हेन इट विल रीच एट द फाइनल स्टेट। ओके सर। तो ये स्ट्रिंग क्या करेगा रिजेक्ट। ये वाला 1 0 1 1 नहीं सर ये नहीं है। ये भी नहीं। ये वाला 1 0 1 1 ये भी नहीं होगा सर। ये भी नहीं। चलो ये जो चार कॉम्बिनेशन है इसमें से एक ही हुआ, टोटल 5 हो गए। तो अभी नेक्स्ट चार कॉम्बिनेशन देखते हैं 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1। तो ये देखो क्या बनेगा मेरा 1 1 0 1 0 0 1। ये क्या बनेगा 1 1 0 1 0 1 1। ये क्या बनेगा 1 1 0 1 1 0 1। ये क्या बनेगा 1 1 0 1 1 1 1। करेक्ट ना। यस सर। चलो बताओ ये वाला एक्सेप्ट करेगा क्या फटाफट। 1 1 0 1 0 0 1 हाँ ये एक्सेप्ट कर। ये एक्सेप्ट कर रहा है। चलो बाकी का बताओ 1 1 ये नहीं होगा सर। ये नहीं हो रहा है। उसके नीचे का नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। उसके नीचे का वो भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। चलो खत्म। मतलब अभी देखो फटाफट कैसे आने लग गया, अपने को ज्यादा टाइम लग रहा है क्या। अब लास्ट वाला कॉम्बिनेशन क्या है 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 और 4 टाइम्स 1। करेक्ट। चलो देखेंगे अभी क्या है 1 1 1
1 0 0 1, फिर 1 1 1 1 0 1 1, ये क्या है 1 1 1 1 1 1 0 1, और ये क्या है 1 1 1 1 1 1 1, करेक्ट ना? यस सर। चलो बताओ ये वाला स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा क्या? नहीं सर। हाँ, नो सर। 1 1 1 1 0 0 1, नो सर। देखो ना 1 1 1 1 0 0 1, 1, हाँ सर ओके। ठीक है, एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से। हाँ, फिर सेकेंड ये एक्सेप्ट हो रहा है, ये वाला 0 1, सेकेंड नहीं होगा। ये नहीं होगा, ये वाला ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, नीचे वाला ये भी नहीं होगा सर। ये भी नहीं होगा। सो टेल मी कितने कितने आए टोटल? 7। कितने स्टेट्स, कितने कितने स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा? द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय दिस एम इज व्हाट? 7, यस सर। करेक्ट है? यस सर। So the answer is what? The answer is this 7. Answer is C. यस सर। Done? यस सर। चलो आज के लिए काफी है फिर. This would be the explanation for this. You can go through it. इस तरीके से उसने ये 7 कॉम्बिनेशन बनाए, हम लोगों ने हर एक को लिया था. टोटल टू मतलब 4 ब्लैंक स्पेस है, तो दैट कैन बी फिल्ड विथ 16 वेज 2⁴. सो हम लोगों ने सारे 16 कॉम्बिनेशन चेक किए यहाँ पे. 16 में से दिस 7 कॉम्बिनेशंस हमको मिले कि इसके लिए एक्सेप्ट कर रहा है, और बाकी के जो 9 थे, दैट 9 स्ट्रिंग्स वेर, दैट 9 पैटर्न्स वेर नॉट एक्सेप्टेड since they don't यस reach सर। the final state. So the correct answer is C. यस सर। Done now? यस सर। So this is what we have started with this subject, right? Top. तो जो मुझे बेसिक्स आपको देने थे, दैट आई हैव गिवन यू, क्योंकि मुझे बेसिक स्टार्ट करना था फाइनाइट ऑटोमाटा से. और फाइनाइट ऑटोमाटा के लिए आपको पता होना चाहिए था कि वो शुरू कहाँ से हुआ. चॉम्स्की हायरार्की से हम लोगों ने लिया, रेगुलर ग्रामर पढ़ा, रेगुलर ग्रामर से फाइनाइट ऑटोमाटा पे आए, फाइनाइट ऑटोमाटा से एनएफए पे भी आए, डीएफए पे भी आए. फिर एनएफए क्या होता है, फिर एनएफए से डीएफए में कितनी स्टेट्स रहेंगी, ओके. फिर एनएफए से डीएफए को कन्वर्जन कैसा करते हैं, दैट वी हैव सीन, एंड वी हैव सीन फ्यू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस एनएफए एंड डीएफए. डन? यस सर। So this would be the basics, right? So next time जब देखेंगे तो इसका जो हायर वर्जन्स है, जैसे एक एक स्टेप्स हम आगे बढ़ते जाएंगे. डन? यस सर। चलो आज के लिए काफी है, सो वी कैन लीव नाउ. ओके सर, थैंक यू सर। फाइन, बाय बाय, सी यू टुमारो. सो जितने जितने ज्यादा स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट एनरोल्ड है, यू आस्क देम, मतलब एक मैसेज दे दो कि प्लीज ज्वाइन करें, ताकि अच्छा खासा जो कुछ जो भी नॉलेज मिल रहा है फ्री का है, यू कैन टेक इट, राइट? यस सर, मैसेज तो ग्रुप बना है पर हाँ, ज्वाइन नहीं कर। ज्वाइन नहीं कर रहे बच्चे, है ना? लेट इट बी. अपना काम है कि मैसेज एक डाल दो कि वी हैव स्टार्टेड विद दिस क्लास. डन? यस सर। चलो आप लोग अभी यू कैन लीव नाउ. ओके सर, थैंक यू। या मला पूर्ण 4 GB